Hello students, let us discuss question number 16 of S.C. Verma on topic SHM. The question is, in figure, the spring constant K is equal to 100 Newton per meter, mass M is equal to 1 kg and force F is equal to 10 Newton. The first part is, find the compression in a spring in equilibrium position. B part is, a sharp blow by some external agent imparts a speed of 2 meters per second to the block towards left. Find the sum of potential energy of the spring and kinetic energy of the block at the instant. C part is, find the time period of resulting SHM. D part is, find the amplitude. E part is, write the potential energy of the spring when block is at left extreme. F part is, write the potential energy of the spring when block is at right extreme. And the last step is here. The answer B, E and F are different. Explain why. This does not violate the principle of conservation of energy. Here the solution is, first part is, a force F is applied here. तो जैसे ही आपने इस साइड से लेफ्ट साइड से इस ब्लॉक पे फोर्स F लगाया तो डेफिनेटली इस फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट आपका यही है, व्हाट विल बी द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग हियर. ये यहाँ पे कंप्रेशन हो गया है, यहाँ से आपने फोर्स F लगाया है. स्प्रिंग में हम अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे एक रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी उस पोजीशन पे जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा. यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाएगा यहाँ से F is equal to F restoring. This F is given to 10 Newton. F restoring we know very well, kx इसका मैग्नीट्यूड होता है. In this way we got it here, x is equal to 10 by k. 10 by k is given to you 100. इसको सॉल्व कर देंगे, it comes out to be 1 upon 10 meter and it comes out to be 0.1 meter and it become here 10 centimeter. It is the answer for first part of the question. अब एक important point हमें समझना है कि यहाँ पे जब हमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है then this situation will be acting as the equilibrium position. Means अब जो oscillations होने हैं वो इसके about होंगे. Let me answer the B part. A sharp blow by some external agent imparts a speed of 2 meters per second to the block towards left. Find the sum of potential energy of the spring and kinetic energy of the block at the instant. Here in B part, you have to calculate the energy of block as well as the spring energy. आपने इस ब्लॉक को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे आपने इसको एक वेलोसिटी इंपार्ट किया है और वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मास आपको गिवन है, ब्लॉक का मास हमारे पास है 1 kg. तो यहाँ पे आपको तो स्प्रिंग एनर्जी निकालनी है एज वेल एज ब्लॉक की एनर्जी निकालनी है एट दिस इंस्टेंट. तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी आपकी एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक. ये सम आपको कैलकुलेट करना है. स्प्रिंग एनर्जी यू नो वेरी वेल, हाफ के एक्स स्क्वायर. ब्लॉक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे k is given to 100, x square is 0.1 into 0.1 क्योंकि x आपने फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पे 0.1 मीटर. हम SI सिस्टम में इसको डिस्कस करेंगे. प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, मास इज 1 kg, वी स्क्वायर इज 2 into 2. इसको सॉल्व कर दीजिए, कम्स आउट टू बी हियर. यहाँ से पॉइंट से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे. इट बिकम 0.5 plus 2 and it become here 2.5 joule is the total energy at this equilibrium position. C part is, find the time period of resulting SHM. The time period of SHM you all know very well. It is totally independent of applied force, velocity. It depends only on m and k. 2 pi under root m by k. Here it is given to you. This m is the mass of the block, oscillating block. T is equal to 2 pi. Under root mass of oscillating block is 1. K is 100 and you got it here 2 pi by 10 and it comes out to be pi by 5 second. It is the answer for third part. D part is, find the amplitude. Here in D part you to calculate the amplitude of oscillation. ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इस पोजीशन पे हमने इस ब्लॉक को एक वेलोसिटी इंपार्ट किया है. यहाँ से वेलोसिटी v हमने इस ब्लॉक को दिया. तो डेफिनेटली ये ब्लॉक यहाँ से स्प्रिंग के साथ कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और स्प्रिंग यहाँ तक कंप्रेस हो गया है. हम अच्छी तरह जानते हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा इस एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक को हमने इंपार्ट की थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक
get converted into potential energy of spring. जो फर्दर कंप्रेशन स्प्रिंग में हुआ है वो यहां से लेकर के और यहां तक हुआ है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना है हमारे पास, हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट दैट टाइम विल बी हाफ ka²। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं जो एम्पलीट्यूड a² आएगा इट बिकम हियर mv²/k एंड देयरफॉर a comes out to be v √of m/k। आप यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, velocity is 2, √of m is 1, k is 100, it comes out to be 2/10, that is equal to 0.2 meter, and it is here 20 centimeter. The 20 centimeter is the answer of this D part. The amplitude of SHM will be 20 centimeter. E part of the question is write the potential energy of the spring when block is at the left extreme. Here in this E part, you to calculate the potential energy of spring at this left extreme position। यहाँ इस पोजीशन पे हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जब हमने इस प्रॉब्लम को स्टार्ट किया था तो आपने यहाँ से एक फोर्स एक्ट किया था जो आपको प्रॉब्लम में गिवन है, और इस फोर्स की वजह से ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो गया था हमारे पास, और ये आया था x, और x जो आपने सॉल्व किया था ये आया था हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर ये हमारे पास कंप्रेस हो गया था यहाँ तक। इसके बाद ये मेन पोजीशन पे आपने एक वेलोसिटी को इंपार्ट किया, और वेलोसिटी इंपार्ट करने के बाद आपने देखा ये स्प्रिंग फर्दर कंप्रेस होता है और ये इसका एम्पलीट्यूड बन जाता है a, और a सॉल्व किया था आपने, इट कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो टोटल कंप्रेशन स्प्रिंग में हुआ है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एक्सट्रीम पॉइंट वो कितना है। द नेट कंप्रेशन इट इज हियर, लेट इट बी x0, मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ये कितना हो जाएगा, ये x तो पहले आपका कंप्रेशन हो गया था फोर्स की वजह से, प्लस फर्दर इसको एम्पलीट्यूड कितना मिला है, a मिला है। x कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, इट कम्स आउट टू बी 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। इतना नेट कंप्रेशन स्प्रिंग में हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम स्प्रिंग की अच्छी तरह जानते हैं, इट कम्स आउट टू बी हाफ kx², हाफ k is given to 100, x² is 0.3 into 0.3। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये पॉइंट से आपके 100 कैंसल आउट हो जाएगा, it comes out to be 9/2, and in this way it is here 4.5 joule. It is the answer of E part. The F part of the question is write the potential energy of the spring when the block is at the right extreme. F part में आपको पूछा गया है to find out the potential energy of the spring at right extreme. बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने E part को डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी एट लेफ्ट एक्सट्रीम। आपको सिमिलरली राइट एक्सट्रीम पे एक्सटेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, और ध्यान से समझेगा, जब भी ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा ये मेन पोजीशन के अबाउट इसके ऑसिलेशंस होंगे, यहाँ इसके ऑसिलेशंस होंगे। अभी लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम कितना गया है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम गया है, यहाँ से ये वाला जो आपने ऑब्जर्व कर लिया है। तो वैसे ही ये राइट साइड में 20 सेंटीमीटर एक्सट्रीम जाएगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर लेट इट बी, ये यहाँ चला गया है, क्योंकि आपको पता है ये जो डिस्टेंस आपके पास है, ये डिस्टेंस कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है ये वाला। तब यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा राइट साइड में। तब आपने ये देखना है कि ओरिजिनली जहां पे स्प्रिंग था ये पोजीशन हमारी ओरिजिनल पोजीशन है जहां पे आपको स्प्रिंग स्टार्टिंग में गिवन है, उस स्टार्टिंग पोजीशन से ये कितना डिस्प्लेस हो गया है, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ से मेन पोजीशन से लेकर के और यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपके पास 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे x आपको नोन है, ये x कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर है। स्प्रिंग में जो आपको फर्दर इलोंगेशन मिला है ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 20 - 10। तो हियर इन दिस पोर्शन F पार्ट को डिस्कस करने के लिए जो एक्सटेंशन यहाँ पर आया है वो एक्सटेंशन कितना है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया आपका x डबल डैश, and it is here 20 - 10, that is equal to 10 centimeter, that is equal to 0.1 meter। तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसका एनर्जी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी यू ऑल नो वेरी वेल, पोटेंशियल एनर्जी E is equal to EP is equal to half kx², x डबल डैश square, half k is given to you 100 and it is here 0.1 into 0.1. After solving this comes out to be 1.2, that comes out to be 0.5 joule.
इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट द राइट एक्सट्रीम। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। यस, इट इज फॉलोइंग एनर्जी कंजर्वेशन। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा है, एज वेल एज जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने सिस्टम को एक वेलोसिटी इंपार्ट की है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी सिस्टम को मिल जाएगी। इस बात को अगर देखते हैं तो यहाँ राइट एक्सट्रीम पे इट इज हियर, राइट एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास ये है, ये हमारे पास लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है। आपने ये देखा था कि जो बॉडी ब्लॉक के ऑसिलेशंस इस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे। अब जब ब्लॉक यहां से इस डायरेक्शन में आया था तो आपने देखा था एक कंप्रेस हो गया था 20 सेंटीमीटर से बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ ईयर। तो अगर 20 सेंटीमीटर से कंप्रेस हो गया यहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की वजह से इसको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी। स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है हम जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ के इज 100, एक्स स्क्वायर इज हियर 0.2 इंटू 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 जूल। आप समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ पे एनर्जी कितनी है 0.5 जूल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्स ने वर्क डन किया है इस पोजीशन तक, ये वर्क डन कितना आ गया मेरे पास, ये वर्क डन हमारे पास आ गया है। जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की आई है फोर्स की वजह से वो कितनी आई है 2 जूल आ गई है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 0.5 था, 2 जूल एक्स्ट्रा आ गया, तो नेट कितना हो जाएगा 2.5 जूल यहाँ पे एनर्जी हमें मिल गई है। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ से हम इस डायरेक्शन में चेक करते हैं। आपने देखा था कि ब्लॉक को हमने एक वेलोसिटी दे दी थी यहाँ पे, वो वेलोसिटी कितनी थी ब्लॉक की, वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हमने दे दी थी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इसको एडिशनल मिल जाएगी, वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम कितना हमारे पास 1 kg है, वी स्क्वायर इज 2 into 2 एंड इट कम्स आउट टू बी 2 जूल। इट मींस यहाँ पे इस सिस्टम को 2 जूल एनर्जी फर्दर मिल गई है। तो 2 जूल एनर्जी मिल गई है, यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई थी 2.5 जूल हो गई थी, प्लस 2 जूल और ऐड हो जाएगा, तो 2.5 प्लस 2 ये ऐड हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.5 जूल। इसका मतलब यहाँ एनर्जी कितनी हो जाएगी 4.5 हो जाएगी। In this way, this problem is in accordance with energy conservation.